So we start with the new topic, trigonometry. Trigonometry is a branch of mathematics that deals with the relationship between angles and sides of a triangle. Specifically, we will be focusing on the right angle triangle. Right angle triangle में अब क्या है? ABC is a right angle triangle, right angled at B. तो the side opposite to the 90 degree इसको hypotenuse कहते हैं. The side opposite to 90 degree. तो यहाँ पर ये है AC. Before starting, we need some basic knowledge about Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या है? Pythagoras theorem states square of the hypotenuse is equal to sum of squares of the other two sides. Side square plus side square. अब ये किस में applicable है? In a right angle triangle. In a right angle triangle, hypotenuse squared is equal to side square plus side square. ये यूज करेंगे जब हम लोगों को दो साइड दी जाएंगी एंड वी नीड टू फाइंड द थर्ड साइड, या एक रेशियो दिया गया है एंड वी नीड टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स. इसीलिए इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. यहाँ पर है ए सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर्ड प्लस बी सी स्क्वायर्ड. सो वी नीड टू नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. सेकेंड केस आपको आनी चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी. Angle sum property. Sum of measures of angles of a triangle is 180. We know that. अब यहां पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो एक एंगल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. We need to establish the relationship between the other two. So I will call angle A as theta. अब angle A plus angle B plus angle C is 180 degrees. एंगल ए को हमने थीटा बोल दिया, बी इज 90 डिग्रीज, एंगल सी इज 180. लीविंग एंगल सी, वी विल टेक द रिमाइंडर ऑन द अदर साइड. सो एंगल सी बिकम्स 90 माइनस थीटा. दैट मीन्स एक एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया 90 माइनस थीटा. Angle A and angle C are complementary angles. Complementary angles because their sum is 90 degree. तो ये वाला एक और कॉन्सेप्ट है we will be using. तो ये दो चीजें पहले आप नोट करके रख लो because we will be needing these आगे जाकर. ठीक है. Next we will start defining the 6 trigonometric ratios. हमारे पास 6 trigonometric ratios हैं, तो उनको डिफाइन करेंगे. We are starting from very scratch. ये lecture जो है this might be called as the introduction to trigonometric ratios. We will be explaining the concepts in this. Next lecture में we will be solving questions mostly from the NCERT and from other ICSE books. Third lecture में we will be proceeding to the specific angles जिनके कुछ trigonometric ratios है और उनकी values. Fourth में we will establish the relationship between the complementary angles and then solve problems on this. चलो, ABC is the right angle triangle. मैंने एक एंगल को थीटा बता दिया, ठीक है. So the first trigonometric ratio is sin theta. जब लिखते हैं तो फर्स्ट तीन लेटर्स ही यूज होंगे. sin theta. अब theta is the angle. The side opposite to theta is BC. The side adjacent, अब दो adjacent sides हैं, AB भी है AC भी है, but AC को we have already designated it as the hypotenuse, the longest side. ये special side है, तो बच गया ये. This is the side adjacent neighbor theta का, ठीक है. तो sin theta जब
डिफाइन करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिफाइन इट एज साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस. इन दिस केस साइन थीटा जो है दैट इज BC ओवर AC. ठीक है. नेक्स्ट कोसाइन थीटा जिसको बोलेंगे कॉस थीटा. कॉस थीटा इज साइड adjacent to theta divided by the hypotenuse. तो ये हो गया AB ओवर AC. दो रेशियोज. थर्ड रेशियो इज tangent theta. We will call this as tan theta. Tan theta is side opposite to theta divided by the side adjacent to theta. It is the ratio of the opposite side to the adjacent side. तो opposite side है BC, adjacent side है AB. Next is cotangent theta. Cotangent theta, we call it cot theta. This is side adjacent to theta over side opposite to theta. It is actually the reciprocal. AB over BC हो गया ये. It is the ratio of the adjacent side to the opposite side. 4 ratios defined है. Fifth ratio is secant theta. We call it sec theta. Sec theta is hypotenuse over side adjacent to theta. अब hypotenuse जो है वो है AC और इसके एडजेसेंट जो साइड है थीटा के वो है AB. इफ यू लुक एट इट ये cos का रेसिप्रोकल है. वी विल एस्टैब्लिश ऑल दीज रिलेशनशिप्स. इसके बाद हो गया कोसेकेंट थीटा. वी कॉल इट कोसेक थीटा. अब कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर साइड ऑपोजिट टू थीटा. ऑपोजिट टू थीटा. तो हाइपोटेनस है AC और ये है BC. तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वी हैव डिफाइंड. ठीक है. अब वी हैड जस्ट प्रूवन कि एंगल A अगर थीटा है ये 90 डिग्री है तो ये जो एंगल है दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा. ओके. यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है we will find the ratios for 90 minus theta. ठीक है. अभी तक हमने एंगल A के लिए यूज किया था. नाउ we will find the ratios for angle C. So I'll make some changes. ये अब 90 माइनस थीटा के केस में क्या हो गया, ये जो है हमारा ऑपोजिट साइड हो गया और ये जो है एडजेसेंट साइड. फॉर 90 माइनस थीटा AB is the opposite side and BC is the adjacent side. ठीक है. So let us find the ratios. अब sin 90 minus theta, as we know, it is opposite side over the hypotenuse. तो opposite side इस बार है AB upon AC. Cosine 90 minus theta, adjacent side adjacent to 90 minus theta, that is BC over the hypotenuse. So it is BC over AC. Tangent के लिए निकालेंगे. We have just established the rule. Tangent 90 minus theta, as the rule says, it is side opposite to over side adjacent. तो opposite side है AB, adjacent side है BC. Cotangent
और cot 90 minus theta. Cot 90 minus theta is adjacent side over the opposite side. So that goes to be BC over AB. फिर आ गया secant. Secant 90 minus theta, hypotenuse over the adjacent side. यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया है. Secant 90 minus theta. So that is hypotenuse. AC over the adjacent side, that is BC. And last में cosec theta. So that is hypotenuse over the opposite side. So hypotenuse and this is the opposite side, AC over AB. Okay. So we have the ratios for theta and 90 minus theta. Now if you observe the relationship here, I'll remove this line. आप ये relationship देखिए. Sin 90 minus theta is AB over AC, which is cos theta. Same value, match कर दें. These two are same. Cos 90 minus theta is BC over AC, same है. Tan 90 minus theta, AB over BC, which is the same here. Cot 90 minus theta, BC over AB. Then sec 90 minus theta is AC over BC, and cosec 90 minus theta is AC over AB. तो इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. साइन 90 माइनस थीटा जो है दैट इज कोसाइन थीटा. Cosine 90 minus theta is sin theta. Tan 90 minus theta is, as we can see, cot theta. Cot 90 minus theta is tan theta. Sec 90 minus theta is cosec theta. Cosec 90 minus theta is sec theta. This is what we call as relation between complementary angles के जो ratios हैं T ratios, trigonometric ratios of complementary angles. Okay, एक बार इसको भी नोट कर ले so that we can proceed आगे. ये इनिशियल स्टेजेस पे ही सीबीएसई में दिस हैज बीन रिमूव्ड. ये 11th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस होता है वेयर इट इज लाइक 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा. स्पेसिफिक रूल्स भी है उसके लिए, वो हम यूनिट सर्कल यूज करके सॉल्व करते हैं, डिराइव करते हैं. सो एट प्रेजेंट वी विल स्टिक टू थीटा 90 माइनस थीटा, दैट इज द एक्यूट एंगल्स एंड द राइट एंगल ट्रायंगल. 9th-10th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ तक है. ICSE में 9th स्टैंडर्ड में वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बट CBSE में इट हैज बीन रिमूव्ड. ठीक है, चलो वी विल एस्टैब्लिश मोर रिलेशनशिप्स. अब ये वाला पार्ट आई डोंट नीड, तो आई विल रिमूव दिस. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी यूज है आगे जाकर और सॉल्विंग. वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस concept, but आगे. So फिलहाल we have this. Now let us establish certain relationships. पहले तो tan और cot के बीच का रिलेशन देख लो. tan theta is BC over AB. cot theta क्या है? AB over BC. They are reciprocals of each other. नहीं क्लिक हुआ तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. tan theta into cot theta, BC over AB, AB over BC. 1. In other words, cot theta into tan theta is 1. ट्रिगो आइडेंटिटीज में यूज करेंगे. tan theta is
1 over cot theta and vice versa. तो tan and cos are reciprocals of each other. अब sin के साथ क्या करना है, देखो sin theta is BC over AC, cosec theta is AC over BC. Again if I do that, multiply कर दे तो sin theta into cosec theta gives me BC over AC into AC over BC. स्ट्राइक आउट 1 हो जाएगा, मतलब cosec theta is 1 upon sin theta. Sin is the reciprocal of cosec. Similarly, sec theta is 1 over cos theta. ठीक है, ओके. अब आई एम गोइंग टू derive one more relationship. फिर ये सबको एक जगह पे नोट करके रख लेते हैं so that we can proceed आगे. ठीक है, sec theta is 1 by cos. See, if you want to solve trigonometric identities अच्छे से, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में. कौन सी आइडेंटिटीज तो लर्न कर लेते हैं, बट देन हाउ टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, दे गेट कंफ्यूज. तो इसलिए ये सारी चीजें जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो आपको परफेक्टली तैयार हैं, अगर आपको याद है, इफ यू कैन जस्ट कम अप विद दैट एट द राइट मोमेंट, तो आपको आइडेंटिटीज पार्ट बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाता है. ठीक है, सो अब ये देखो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा मुझको चाहिए. साइन थीटा इज BC ओवर AC, कोसाइन थीटा हमने प्रूव किया AB ओवर AC. ये दो चीजें. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसको लगा बोर्ड नीचे आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. ठीक है, हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया, तो दैट इज BC ओवर AC डिवाइडेड बाय AB ओवर AC. ठीक है, तो एक्चुअली तो डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाते हैं. अगर क्लिक नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फ्रैक्शन इतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो आप कभी भी ये प्रोसेस यूज कर सकते हो. ठीक है, नाउ यू नो whenever we are dividing fractions, we can multiply by the reciprocal of this. Sorry, ऐसे इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो AC और AC कैंसिल हो गया. आई एम लेफ्ट विद BC ओवर AB. तो यहाँ पर भी हो जाता, डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हो BC ओवर AB यहाँ पर है इसमें, और ये जो AC है, एक BC अपॉन AB इंटू AC, और ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये ऊपर चला जाएगा एंड यू कैन स्ट्राइक इट ऑफ. ठीक है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट जनरली अगर आप इस रूल को बैठा दो, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो यू कैन स्ट्राइक इट ऑफ. तो मिला ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा gives me BC over AB. Now we will look at some ratio here which matches. Tan theta, it is the same, so this is equal to tan theta. तो उसका मतलब है tan theta is BC upon AB. Sorry, tan theta is sin theta over cosine theta. ये रिलेशनशिप मिल गई. रिवर्स कर सकते हैं, cos थीटा ओवर sin थीटा, अगेन सिमिलर वे में AB over AC, BC over AC. So I'll strike this off. It is AB over BC. Now if you observe AB over
BC यहाँ पर है, cot थीटा से मिल रहा है, that means this is cot थीटा, तो cot थीटा एस्टैब्लिश हो गया, cos थीटा ओवर sin थीटा। ये सारे रिलेशनशिप्स एक जगह नोट करके रखना है so that we are using it repeatedly। अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया तो you can find the remaining 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अब ये था पूरा इंट्रोडक्शन में what all we have covered, उसका एक समरी, ये तो यहाँ पर ऑलरेडी है। More important is the relationship we will be using it। Sin theta is also 1 by cosec theta, cos theta is 1 over sec theta, tan theta it is sin theta over cos theta, also it is 1 by cotangent theta, cotangent theta जो है वो है cos theta over sin theta, it is also 1 by tan theta, sec थीटा जो है वो है 1 by cos थीटा, और cosec थीटा जो है वो है 1 by sin थीटा। एंड जो 90 माइनस थीटा वाले जो रूल्स हमने एस्टैब्लिश किए थे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन लेट अस ट्राई अ सिंपल क्वेश्चन। पहले ये रिलेशनशिप भी है, तो अगर हमने एक अभी जैसे साइन अगर मैंने निकाल लिया तो आई कैन गेट कोसेक डायरेक्टली, टैन निकाल लिया तो कॉट मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, चलो सो स्टार्ट विद अ क्वेश्चन जहां पर दो साइड्स दी हुई हैं। क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to 4 centimeters, BC is equal to 3 centimeters, angle B is 90 degree, find the 6 trigonometric ratios of angle A। ठीक है, तो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ए बी जो है इट इज 4, ए बी इज 4 सेंटीमीटर्स, बी सी इज 3 सेंटीमीटर्स। हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। वी विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट टू गेट द हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर, पहले एंगल बी इज 90 degrees, so we can apply Pythagoras theorem। Sum of squares of the two sides, perpendicular sides, is equal to the square of the hypotenuse। ये hypotenuse है। AB squared plus BC squared gives us AC squared। So 4 squared plus 3 squared is AC squared। So this is 16 plus 9 gives us 25, which is AC squared। तो AC जो है वो हो गया √25, which is 5 centimeters, सेंटीमीटर्स में तो 5। तो पहले तो तीनों साइड्स अवेलेबल है। नाउ वी विल एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। तो सबसे पहले एंगल ए के उन्होंने 60 रेशियोज पूछे, तो वी फर्स्ट फाइंड आउट साइन ए। साइन ए था साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए ओवर द हाइपोटेनस। तो दैट इज BC over AC, that makes it 3/5। तो साइन ए हो गया 3/5। cos A side adjacent to A over the hypotenuse।
तो एडजेसेंट साइड है ए बी ओवर ए सी 4/5। ना इफ यू वांट tan हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं और वी नो द रिलेशनशिप। तो tan a जो है एक तो हो गया बाय दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या जो एक्चुअली प्रोसेस है निकालने की, साइड ऑपोजिट टू a ओवर साइड एडजेसेंट टू a। तो ऑपोजिट टू a है bc, एडजेसेंट टू a है ab। अब इन दोनों के बीच में दिस इज 3/4। नाउ ऑल्टरनेटली we just established a relationship tan a का, what was that, sin a over cosine a। ठीक है, तो sin a is already 3/5, cos a is 4/5। as discussed we can strike this off, so this is 3/4। दोनों मेथड से सेम चीज मिल जाएगी। कोटेंजेंट a, देखो मैंने रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश की थी, सो दैट इज 1/tan a, आई कैन यूज दैट। रेसिप्रोकल ऑफ tan, रेसिप्रोकल मतलब 3/4 है तो फ्लिप कर देंगे, इट विल बिकम 4/3। और नहीं तो आप नॉर्मल मेथड यूज कर सकते हो कोटेंजेंट a का, दैट इज साइड एडजेसेंट टू a ओवर साइड ऑपोजिट टू a। So that will be AB over BC makes it 4/3। ठीक है, तो चार रेशियोज मिल गए, कोई भी एक यूज करना है फॉर गेटिंग दिस थिंग। मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। आई एम नॉट रिमूविंग द रिलेशनशिप वाला पार्ट फॉर द टाइम बीइंग। तो हो गया। अब सीकेंट ए चाहिए, तो sec a I can write it as 1 upon cosine a। कोसाइन का रेसिप्रोकल है तो उस हिसाब से आई विल गेट इट एज 5/4। अगर ये मेथड यूज करना है तो sec a इज hypotenuse divided by the side adjacent to a। ठीक है, तो हाइपोटेनस हो गया 5, ए के एडजेसेंट साइड है 4। ठीक है, वी कुड हैव रिटन AC over AB, AC over AB दैट इज 5/4। लास्ट हो गया कोसेक, कोसेक ए जो है साइन का रेसिप्रोकल है, so that makes it sin is 3/5, so this is 5/3। or we may use alternate method again, cosec a जो है that is hypotenuse over side opposite to a। तो hypotenuse हो गया 5 और ये 3, 5/3। So we've solved the first question. They had asked the 6 T ratios of A. We have obtained the 6 T ratios. ठीक है, एक बार नोट कर लो so that I remove this and then we can solve more questions based on this। इंट्रोडक्शन पार्ट में यही है, इसके लिए इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर उसको डिवाइड करेंगे तो चैप्टर को, तो इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। वी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द रेशियोज। सेकेंड पार्ट जो होगा दैट विल बी डीलिंग विद द एंगल्स और उनकी वैल्यूज, एंड द थर्ड पार्ट जो है दैट विल डील विद द आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो एक तो ये टाइप का हो गया जहां पर हमको दो साइड्स दी हैं एंड देव आस्क्ड अस टू फाइंड द टी रेशियोज।
सेकेंड टाइप जो होता है, that is when they give us a particular ratio and have asked us to obtain the remaining trigonometric ratios. सिर्फ एक साइन या कॉस या tan ऐसे कोई एक वैल्यू दे देंगे एंड दे विल आस्क अस टू फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो एक उस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो there is a question. It says given 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. ऐसे 15 cot A is equal to 8. बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. So first of all, 15 cot A is equal to 8. We will take 15 on the other side. Cot A becomes 8 over 15. So we have a right angle triangle. ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ड्रॉ कर लेते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल ABC. ठीक है, इन triangle ABC, since no information is given, I am assuming angle B is 90 degree. ठीक है, अब उन्होंने cot A के बारे में कहा है, तो first I will find out what is cot A. Cot A in terms of the sides of the right angle triangle. So cot A in terms of the sides. So cot A is adjacent side adjacent to the angle. तो angle यहाँ पर A है, इसके adjacent side होगा AB over opposite side. तो ये है adjacent side, ये है opposite side. तो उस हिसाब से एंगल A का adjacent this, A का opposite is this, so this is AB over BC. This is 1, this is 2. So by 1 and 2, what I conclude, AB over BC is 8 over 15. But this is the ratio of two sides. ये आपको sides नहीं, AB is not 8 and BC is 15 ऐसे नहीं दिया है. It is a possibility कि ये 8 है, ये 15 है, but ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ और है, क्योंकि if I have suppose AB is equal to 16, BC is equal to 30, अगर इन दोनों का रेशियो अगर मैं निकाल रहा हूं, इन दोनों का, I'll get the same thing, 8 over 15. अगर ये 80 है और ये 150 है, still it will be the same ratio. तो इसलिए आप randomly ऐसे 8 और 15 रख के नहीं सॉल्व कर सकते. हाँ, रेशियो निकाल रहे हैं, the values will come same, but since you're going to write an exam, MCQ होता तो आप कर सकते हो. Otherwise, since it is the ratio of two sides, ठीक है, आप रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर हमने रेशियो में एक टर्म यूज करते हैं, एक स्टेटमेंट, लेट द कॉमन फैक्टर बी x यूज करते हैं, यहाँ पे मैं k यूज कर रहा हूं. लेट द कॉमन फैक्टर बी k. ठीक है, सो AB is equal to 8k, BC is equal to 15k. Now when I'm using this, I am covering all the possibilities. ये k कोई भी एक नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, एंड I can establish the relationship between the other two sides. तो हमने एक कहा AB is equal to 8k, BC is equal to 15k. Now I have two sides available. राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो दैट वी गेट द थर्ड साइड. तो इन ट्राइंगल ABC, angle B is 90 degree. By Pythagoras theorem,
AB squared plus BC squared is equal to AC squared. Sum of squares of the perpendicular sides is equal to square of the hypotenuse. Sum of squares of the perpendicular sides. ठीक है, तो AB का स्क्वायर है 8k स्क्वायर, BC is 15k स्क्वायर और ये हो गया AC स्क्वायर. This is going to be 64k square and this is going to be 225k square. 8, 5 and 17 they form what we call as the Pythagorean triplet. ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, AC square that gives me 289k square. तो AC जो है इसका स्क्वायर रूट that gives me 17k. तो I have the hypotenuse. तीनों साइड्स अवेलेबल हैं. उन्होंने दो ही रेशियोज मांगे हैं, साइन ए एंड सेक ए. तो साइन ए इट इज साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपोजिट साइड over the hypotenuse. Initial stages में it is recommended that you write these things opposite side over hypotenuse and then proceed. एक बार इससे क्या होगा, बार बार ये चीज लिखोगे तो it will get engraved here दिमाग में और आप उसको यूज कर सकोगे अच्छे से. तो you have to keep on writing it जब तक आप एकदम 100% श्योर नहीं है कि आपको ये याद हो गया है. अब अपोजिट साइड क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है, AC. सो दिस इज BC ओवर AC. तो साइन A जो हो गया वो है 15k ओवर 17k. स्ट्राइक आउट कर दो k को. सो दिस इज 15 ओवर 17. k कैन नॉट बी 0 ऑब्वियसली, तो इसलिए वी कैन स्ट्राइक इट ऑफ. दूसरी चीज सेक A पूछा है. sec A. Now sec A is hypotenuse divided by the adjacent side. Hypotenuse है AC, adjacent side है AB. So sec A will become 17k over 8k. That is 17 over 8. तो आपको दो वैल्यूज पूछी थी, sin A that you got as 15 by 17. sec A पूछा था that is 17 over 8. तो if they have given us the ratio, तो आप पहले उस हिसाब से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे एंड देन यू विल एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स. एस्टैब्लिश करना मतलब जैसे कॉट ए दिया था, तो कॉट ए एग्जैक्टली क्या होता है, कॉट ए इज एडजेसेंट साइड ओवर द अपोजिट साइड. तो हमने उस हिसाब से ए बी अपॉन बी सी लिख दिया. फिर जो इन्फॉर्मेशन थी कॉट ए का जो वैल्यू मिल रहा था उसको रख दिया एंड देन वी यूज द कॉमन फैक्टर वाला पार्ट एंड गेट स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द साइड्स. स्पेसिफिक वैल्यूज मतलब वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ के. फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, वी विल बी सॉल्विंग मोर सच क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर. उसके पहले और एक टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको भी सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसको नोट कर ले. वैसे एक लॉन्ग प्रोसेस भी था इसको सॉल्व करने का. लॉन्ग प्रोसेस इन द सेंस इफ आई डोंट वांट टू राइट दिस, मुझको साइन ए मिल गया 15 by 17. सी साइन ए इज 15 by 17. cot a is already 8 by 15. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो cot a is what, बेसिकली cot क्या है, ये तो है कोसाइन a ओवर साइन a, है ना. तो साइन a इंटू कॉट a किया, मिला 15 by 17 इंटू 8 by 15. ऑल्टरनेट मेथड है. फिफ्टीन कैंसिल. यहां पर से ये क्या हो गया, ये तो cos a by sin a था और ये खुद ही sin a है. इसको कैंसिल कर दो, आपको मिल जाएगा cos a that is 8 by 17. cos a is 8 by 17.
नाउ वी नो sec a क्या होता है, 1 by cos 17/8। तो वैसे भी निकाल सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही स्पेसिफिक मेथड यूज किया जाए, ठीक है, वी कुड हैव डन दैट। तो ये सब करने से क्या होता है कि यू आर लाइक यू गेट थरो विद द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस टी रेशियोज। तो ये आइडेंटिटीज पार्ट में आपको हेल्प करता है, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। यहां पर इन ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P, उन्होंने कहा P इज 90 डिग्रीज, OP इज 7 सेंटीमीटर दिया है, एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन the values of sin Q and cosine Q, ठीक है। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आई विल फर्स्ट ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, P is 90 degree. If P is 90 degree at place, this is O, this is Q, OPQ. तो obviously this is going to be the hypotenuse. OP की वैल्यू दी गई है 7, hypotenuse है OQ, and they have given a relationship. This minus this is equal to 1 centimeter, ऐसे दिया हुआ है। OQ minus PQ is equal to 1. So what I will assume, let OQ is equal to X, या PQ जो है उसको x ले लो, PQ इज इक्वल टू x कर दिया, OQ माइनस x इज 1, तो OQ जो है वो हो जाता है x प्लस 1। इफ यू वुड हैव टेकन OQ यहाँ पर, तो आपको PQ, अगर आपने OQ को x लिया माइनस PQ इज 1, तो आपका PQ की जो वैल्यू है, PQ goes on this side, 1 comes here, so it will become x minus 1। तो ये करने के बजाय नेगेटिव नंबर आने के से अच्छा है वी विल बी यूजिंग दिस, ठीक है। तो OQ became x plus 1, PQ became x plus 1, ठीक है। क्योंकि हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस शुड बी ग्रेटर देन द अदर टू साइड्स, सो ये x है तो ये x plus 1 है। अब पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास 3 साइड्स हैं, तो उनका वैल्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एज वी नो पाइथागोरस थ्योरम सेज sum of squares of the perpendicular sides is equal to the square of the hypotenuse. So OP squared plus PQ squared gives us OQ squared. अब OP squared हो गया 7 squared, ये PQ squared है x squared, और ये हो गया x plus 1 the whole square। तो ये है 49 x plus 1 whole square minus x square। आप एक्सपैंड कर देंगे x plus 1 the whole square, तो इट विल बी इजियर। अगर नहीं करना है, आई शो यू बोथ द वेज। तो फर्स्ट केस में तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख दो x प्लस 1 द होल स्क्वायर। उसके एग्जैक्टली नीचे तो ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया x squared plus 2x plus 1। So this is how I got this. In case
यू आर नॉट अवेयर या याद नहीं है तो यूज कर सकते हैं। दूसरा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको स्ट्राइक आउट कर दें। ठीक है, सो बिकॉज दिस वाज पॉजिटिव नेगेटिव वी कैंसिल्ड इट। 49 ये जो 1 है आई विल टेक इट ऑन द अदर साइड, सिंस इट गोज ऑन द अदर साइड प्लस है माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। मतलब 2x जो है वो हो गया 48, that gives x की value as 24, 48 by 2 that is 24। now if I have 24 here मतलब PQ की जो वैल्यू है वो हो गई 24, x है x which is 24, तो OQ जो हाइपोटेनस है वो है x plus 1, that makes it 24 plus 1 25। तो now I have the values, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24, ये हो गया 25। another Pythagorean triplet 7, 24 and 25। so now I have all the three sides, I can find the ratios। sin of q पूछा है, तो q ये तो हाइपोटेनस है, q का जो अपोजिट साइड है वो ये है, एडजेसेंट साइड जो है वो ये है। तो sin of q is side opposite to q over the hypotenuse। तो साइड अपोजिट टू q हो गया OP over OQ, हाइपोटेनस है तो OP over OQ that is 7 over 25। कोसाइन Q पूछा है तो that is side adjacent over the hypotenuse। तो adjacent साइड जो है वो है PQ, that is 24 over 25। now just in case अगर उन्होंने सारे टी रेशियोज मांगे होते तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये बिना यूज किए। एक तो नॉर्मल प्रोसेस है जहां पर वी विल एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, टैंजेंट के लिए अपोजिट ओवर एडजेसेंट, को टैंजेंट के लिए एडजेसेंट ओवर अपोजिट एंड सो ऑन। नहीं तो इन दोनों रेशियो से वी विल इवैल्यूएट द रिमेनिंग। इन केस दे आस्क अस, सपोज उन्होंने पूछा फाइंड ऑल टी रेशियोज, तो tan q आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे, sin q over cos q, that gives you 7 by 25 over 24 by 25। दोनों के डिनोमिनेटर स्ट्राइक आउट कर दो, 7 over 24। कोटेंजेंट q क्या करेंगे, वी नो द रिलेशनशिप 1 by tan, इसका रेसिप्रोकल है तो 24 over 7 हो जाएगा। ठीक है, कोटेंजेंट के लिए सीकेंट q इट इज 1 over कोसाइन, कोसाइन का रेसिप्रोकल हो जाता है 25 by 24 एंड कोसिकेंट q जो है दैट इज 1 अपॉन sin q, तो ये हो जाएगा 25 over 7। तो यूजिंग दिस वी कैन, अगर हम लोगों को रिलेशनशिप पता है तो वी डोंट हैव टू लाइक राइट डाउन अपोजिट और एडजेसेंट बार बार, हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं वी आर गोइंग टू सॉल्व, बट उसके पहले पूरा नेक्स्ट सेशन जो हम लोग करेंगे we will be solving questions based on what we have learned in this lecture। ठीक है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। I'll just show you one more question। जैसे कि इन्होंने कहा है in a right angled triangle ABC, right angled at B, that means we can say angle B is equal to 90 degrees if tan A is equal to 1। verify, वेरीफाई करना है 2 sin A cos A is 1। ठीक है, so we will start।
उन्होंने tan A 1 बताया है, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे एज गिवन, दे हैव क्लियरली सेड इट इज राइट एंगल एट B, तो ABC हो गया। tan A यहाँ पर दिया हुआ है 1, I'll mark this as 1. Again, tan A, according to this, it is opposite side over adjacent side, है ना, A के opposite, A के adjacent. So tan A here, this is BC over AB. So by 1 and 2, as we can see, BC over AB is 1. BC is equal to AB. AB को उस साइड लेके, that means we have an isosceles right angle triangle. अगर isosceles right angle triangle है, angle sum property यूज करेंगे, तो we will get this as 45 degree, this as 45 degree, and we can use that as well. But अभी हमने ratios सिर्फ ये किए, we have not obtained T ratios for specific angles, तो इसीलिए we will stick to the method we are using so far. तो BC is equal to AB, we will say is equal to K. Say मतलब we are just taking any random variable K. तो BC भी K हो गया, AB भी K हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर gives us AC स्क्वायर, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर AC स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर इज 2K स्क्वायर, तो AC जो है वो है √2K। आपने स्क्वायर रूट निकाला ऐसे, so we split this √2 into √K square, K square and the square root cancel out, तो K मिल गया, क्योंकि K square, this is K square raised to half, एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो K हो जाता है। बहुत बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते, लोअर ग्रेड्स में इतना फोकस नहीं किया रहता है, तो AC हो गया √2K। Now we need to find the ratios. Sin A and cos A. Left hand side says 2 sin A cos A, तो sin A पहले कैलकुलेट करते हैं। Sin A opposite side over the hypotenuse. Opposite side मतलब side opposite to angle A. A के opposite वाला side है K और hypotenuse है √2K, K over √2K. Strike this off, you get 1 by √2. Next, cos A, adjacent side over the hypotenuse, तो ये है adjacent side, ये है hypotenuse, यहाँ पर adjacent side है AB, hypotenuse है AC, so again that is K over √2K, K cancelled, 1 by √2, so sin A and cos A are the same. तो अब वेरीफाई करने के लिए कहा है, वेरीफाई करने के लिए कहा है तो ऑब्वियसली वी शुड गेट 1, अगर नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ एरर कर रहे हो। sin A is 1 upon √2, cos A is 1 upon √2, तो √2 into √2, see this is 2 into 1 upon √2 into √2, √2 into √2 is 2, नहीं आता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, √2 का मतलब होता है 2 raised to half, ये भी है 2 raised to half, so 2 raised to half plus half, why? Because a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, half plus half हो गया 1, 2 raised to 1 that is 2, तो √2 into √2 is 2. जनरली nth रूट ऑफ a इसका मतलब होता है a raised to 1 by n, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से
बिठा लो, थोड़े एक्सपोनेंट्स ये सारी चीजें आनी चाहिए, नहीं आती है तो यहाँ पर इसको रेफर कर लो। आई विल बी यूजिंग दिस, मतलब एक्सप्लेनिंग इट so that you understand what is happening. So I got left hand side as 1, which is equal to my right hand side, is equal to RHS. So result verified. तो वेरीफाई करने के लिए कहा था, we have verified the result. We will be solving more questions. जो next session होगा, that will be dealing only with the problems based on this concept. Once the problems are solved, we will be using concepts from various other books जिसमें यही जो पढ़ा हुआ है इसको और relationship को use करेंगे. Once that is completed, then in the third session we will start with T ratios for specific angles. ठीक है, तो आप सारे relationships एक बार नोट कर लो एंड रेफर कर लो बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर. आप एक बार उसको प्रिपेयर करके आ जाओ.